Biotech Agriculture Forum for Technical Education of Farming Society Kota, Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya Raipur, University of Agricultural Sciences Raichur, Karnataka, Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya Bilaspur, Chhattisgarh, and Farmers Park, Hyderabad, Telangana. I cordially welcome you all to this 21 days winter school training on fostering environmental sustainability through food security, agricultural, and modern sciences innovation. Vital Biotech is India's leading publication, research, and training institute whose goal is to tackle the world's most pressing problems related to food and agriculture. Whereas the Agriculture Forum for Technical Education of Farming Society Kota serves as a spiracle between the network of rural communities in India and other stakeholders such as government, development organization, and corporate entities. Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya IGKV Raipur, Chhattisgarh was established on January 20, 1987. IGKV has a primary mandate to provide education, conduct research, and offer extension services in the field of agriculture and related areas. Its work plays a vital role in improving agricultural practices and the lives of farmers in Chhattisgarh. University of Agricultural Sciences Raichur came into existence on 22nd November 2008 through bifurcation from USA Dharwad. It is the third agricultural university established in the state after Bengaluru and Dharwad in Karnataka. With the establishment of USA Dharwad in 1986, Raichur still had the privilege of being the second largest campus and a major hub of education in this region. Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, established in June 2012, has nearly 95 government and private colleges affiliated in 4 districts of Chhattisgarh state, which together constitute the jurisdiction of ABVV. The university plans to develop a strategy for enhancing the range of educational approaches and the use of technology. As a part of this approach, the university plans to start classroom into art of the ones, enabling teachers to teach using a wide variety of media. Farmers Park is a platform committed to empowering organic and natural farmers across India by providing farm advisory services, free soil testing, and marketing support. It aims to promote sustainable farming practices, helping farmers maximize their yield while protecting the environment. Through their services, they strive to create a strong, eco-conscious agricultural community nationwide. This evening, we are indeed fortunate to have such a honorable dignitary among us. It is my privilege and honor to introduce Dr. Sunil Kumar Goyal, sir. Sir is currently working as an associate professor in the Department of Farm Engineering, Institute of Agricultural Sciences at Banaras Hindu University, Varanasi, UP since 2010. Dr. Goyal did B.Tech in Agricultural Engineering from Chandrasekhar Azad University of Agriculture and Technology, Kanpur. M.Tech in same discipline with specialization in agricultural processing and food engineering from Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, Raipur, Chhattisgarh, and completed PhD in agricultural process and food engineering from Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture and Technology, Meerut, UP. He is the recipient of UGC National Fellowship in PhD. He also has been awarded postdoc fellowship by UGC for conducting research on various qualities of basmati and non-basmati rice. Dr. Goyal is a recipient of 2 national awards. One, Rajiv Gandhi National Award 2013 for book authorship by Honorable President of India, Shri Pranab Mukherjee ji. And second, Rajya Sabha Gaurav National Award 2015 for book authorship by Honorable President of India, Shri Ram Nath Kovind ji. Both awards are conferred by Department of Official Languages, Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi. Dr. Goyal has also been conferred more than 20 awards and organized many international and national seminars, conferences, workshops, and other scientific events. He has delivered more than 50 invited talks as a resource person and guest lecturer as a subject expert.
Dr. Goyal has so far published 23 books in Hindi and English, 19 book chapters, 61 research and review papers, and more than 200 popular articles to his credit in various journals of international and national repute. He has guided 8 PhD and 10 MSc students of food science and technology. He handled many research projects funded by several agencies. Presently, Dr. Goyal is engaged in teaching, research and extension, and guiding PhD and MSc students. Dr. Goyal is a DGCA certified drone pilot. Respected sir, your achievements are shining beacon illuminating the path for others and redefining excellence, and it is impossible to describe them in words. So without further ado, I warmly welcome you and gratefully hand over this winter school virtual stage to you. Over to you, sir. Okay. Namaskar. Thank you, Susmita ji, for giving very nice and more than what I know about me. And you explain each and everything, whatever I can earn during my whole academic life. So thank you again. And I really thankful to Dr. Jiten Mehta sir for providing me this opportunity to interact the galaxy of scientists, students, or you can say uh, new minds. Those are thinking about the agriculture. Especially, I am thankful to the organizers, or you can say collaborators of this 21 days winter school, especially this agriculture and technology society, quota, and tech, agriculture university from that. Sir, Atal sorry Bihari to Vajpayee interrupt. Vishwavidyalaya, Bilaspur, University of Science. Yeah. Yes, please, ma'am. Sir, your voice is breaking. I think there is some network Okay, glitch. 1 minute. Okay, 1 minute. Now, it's okay? Yes, Audible, sir. sir. Audible. Okay. So, friends, today I will be discussing about AI and IoT, how these both technologies are helpful to fostering our agriculture, and how these technology can convert our basic agriculture into high-tech agriculture. Uh, I think you might know that our Honorable Prime Minister, sir, is thinking about this agriculture for this developed India mission at 2047. So for this developed India, or you can say any developed country, there is some parameters those considered for a developed country. So high-tech agriculture is one of them. And if we include or use such type of technology, then we can say we definitely forward for the developed nation. Okay, so let's start. Oh, there is some problem, I think. Okay, no. Okay. Outlines. What would I discuss during this 1 hour about artificial intelligence and Internet of Things? Then scope of using AI and IoT in agriculture, how we can use this both technology. Then what applications, possible applications that may be helpful for this agriculture. Then next, I will discuss about limitations. Everywhere there are certain types of limitations. So these both technology also having some limitations. I will discuss one by one about the limitations. And at the end of talk,
there is a message, or you can say conclusion. So that will be take home message. Okay. So as I know, Mehta sir has requested that the talk will be in bilingual mode. I try to convert few. Actually, there are some technical terms that cannot be converted in Hindi, so I try to explain the things. First, the question is what is artificial intelligence? तो होता क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? जैसे हम ह्यूमन हैं या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसके पास अपना एक इंटेलिजेंस होता है, एक बौद्धिक क्षमता होती है। सिमिलर वे में अगर वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता हम यूज करें, दैट विल कॉल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि कोई काम जो करना होता है, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में कुछ हमें काम करना है, तो उसके लिए जो हम इंटेलिजेंसी, उसके जो जिन चीजों की जरूरत है, तो उसको ह्यूमन इंटेलिजेंसी ना यूज करके उसमें जो हम मशीनों का हेल्प लेके जो हम वर्क कर रहे हैं, तो उसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस तरीके से वहां पर बोलेंगे। जैसे इसके बारे में थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स हैं कि रसल और उनके ग्रुप ने 2003 में एक चीज पब्लिश की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो एआई इज द इंटेलिजेंस एग्जिबिटेड बाय मशीन्स रादर देन ह्यूमन और अदर एनिमल्स, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था। ठीक है। और ये जो इन्वेंट किया है इसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, इसको हार्वर्ड साइमन ने 1965 में इसको एक तरीके से कहें खोजा या बनाया। और जो एआई वर्ड जो कॉइन हुआ, उसको जॉन मैककार्थी ने 1965 में ही उसको ये कॉइन किया कि इसको हम एआई बोलेंगे। इट इज नॉट मैन वर्सेस मशीन। एआई जो है वो मैन वर्सेस मशीन नहीं है, लेकिन क्या है कि मैन एंड मशीन सिनर्जी है। तो जैसे ह्यूमन है और मशीन है, मींस ह्यूमन एंड कंप्यूटर, जब दोनों मिलके कोई काम कर रहे होते हैं तो उसको हम लोग एआई बोलेंगे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि मैन एंड मशीन सिनर्जी, दैट इज कॉल्ड एआई। एंड एआई इज बेनिफिटिंग टू ऑल सेक्टर्स। हर फील्ड में आज आप देख रहे होंगे, हर जगह लोग एआई की बात कर रहे हैं, एवरीवेयर। जैसे अभी मैं न्यूज देख रहा था, कुंभ में जो मेला लगा हुआ है हमारे बगल में, मैं बनारस से बात कर रहा हूँ, तो प्रयागराज में जो मेला लगा हुआ वहां पर एआई। सर गुड इवनिंग सर। सर एक ऑनलाइन लेक्चर अभी ले रहा हूँ मैं, कॉल बैक सर थोड़ी देर में करें? यस यस सर, मैं बात करता हूँ सर आपसे। ओके 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 ठीक है। तो हर फील्ड में आजकल एआई का हम लोग बात कर रहे हैं। अभी जैसे मैं बता रहा था, कुंभ में जो मेला लगा हुआ है, महाकुंभ हमारा लगा हुआ है, तो वहां पर एआई एनेबल्ड कैमरे लगे हुए हैं। मतलब हर जगह एआई, एआई मेडिकल में आ गया, एजुकेशन में आ गया, मीडिया में है, इंडस्ट्रीज में, एवरीवेयर वी कैन यूज दिस एआई। सो हमारा एग्रीकल्चर क्यों पीछे रहे? तो इसमें एग्रीकल्चर में भी हम लोग यूज कर रहे हैं इसको। एंड अगर पिक्चोरियल व्यू में हम इसको बताना चाहें या देखना चाहें, तो आप देखेंगे ये जो एआई है, ये जो मैं बताया कि मैन वर्सेस मशीन नहीं है, मैन एंड मशीन ये सिनर्जी है। ठीक है। तो इसको अगर साइंटिफिक टर्म्स में इसको हम डिफाइन करना चाहें, तो ये है एआई इज द एनालिटिकल प्रोसेस वन कैन एसोसिएट विद ह्यूमन थिंकिंग, लाइक स्पीच रिकॉग्निशन, natural language understanding, and translation, making which will become powerful and useful. तो जहां जहां हम इसको हम यूज करें और अच्छे काम के लिए यूज करें। आप देखेंगे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे कहावत है ना कि एवरी कॉइन हैज टू फेसेस, टेल एंड हेड। तो हर चीज की अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, तो उसको हमें अच्छी जगह यूज करना है। तो एग्रीकल्चर में हम उसको कहाँ कैसे यूज कर सकते हैं, इस पे हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। एक नई चीज तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हमारा जो एग्रीकल्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्री 4.0।
आज का जो टाइम चल रहा है। तो इससे पहले भी 4.0 है, तो तीन इसके पहले और इंडस्ट्री बेस्ड चीजें रही होंगी। तो उसको, उस पर अगर हम एक बार नजर डालें, देन वी कैन फाइंड दैट ये जो हमारा इंडस्ट्री 1.0 था, ये जो 1700 ईस्वी 1700 जो टाइम था, उसमें ये स्टार्ट हुआ। और इसमें जो बेसिक काम था या मेन वर्क था, दैट वाज मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग। हाउ वी कैन प्रोड्यूस द थिंग्स or manufacture the things with the help of different types of machines, or you can say मैकेनिकल आइटम्स को हम यूज करके कर रहे थे। सेकंड में क्या हुआ, इंडस्ट्री सेकंड में जो हमारी 19th सेंचुरी में रही, इसमें था कि मास प्रोडक्शन। 870 में हमने मैकेनिकल प्रोडक्शन स्टार्ट, उससे क्या होगा, 18th सेंचुरी में मास प्रोडक्शन के से ही जो हमारी 20वीं सेंचुरी है, शताब्दी है, उसमें आप देखेंगे कि आईटी ऑटोमेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उससे फिर ऑटोमेशन, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा प्रोडक्शन बढ़ाने में। और जो हमारा अभी करंट टाइम जो चल रहा है, इसको हम लोग इंडस्ट्री 4.0 बोल रहे हैं, या इंडस्ट्री 4.0 है। तो इसमें क्या है कि साइबर फिजिकल सिस्टम यूज, किस तरीके से हम इंटरनेट को, साइबर को और फिजिकल सिस्टम का यूज करके, जैसे इसमें हमारा टेक्नोलॉजीज लाइक मशीन लर्निंग, एआई एनेबल्ड ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड इवन डिसीजन मेकिंग, इन सारी चीजों में हम साइबर को, साइबर जो हमारा एआई और ये आईओटी है, इनको हम साइबर एक ब्रॉड टर्म में बोलें, तो इनका कैसे यूज करके हम अपने जो ऑटोमेशन सिस्टम है और डिसीजन मेकिंग भी हम इनसे कर सकें। ठीक है, तो जो हमारा एग्रीकल्चर है, ये हमारा द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, डिस्टरप्टेड इंडस्ट्री आफ्टर इंडस्ट्री, दैट बेटर इंफॉर्मेशन फ्लोज, lower transaction cost and faster communication have made doing business easier and more efficient. आई एम शेयरिंग अगेन, कुछ इंटरनेट आई थिंक प्रॉब्लम कर रहा था। अभी ये स्लाइड विजिबल है मेरा, सुष्मिता जी? Yes sir, slide is visible. हाँ, बीच में कुछ नेट इशू हो रहा था। ओके, तो मैं ये बोल रहा था कि जो हमारा इंडस्ट्री 4 है, ये पूरा एग्रीकल्चर बेस्ड है, और इसमें साइबर मतलब इंटरनेट, एआई और आईओटी का एक बहुत ज्यादा यूज करना है हमें, जिससे कि इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें हम, और जो रोबोटिक्स और इम्पोर्टेंट जो हमारे मशीनरी हैं, जो आजकल हाईटेक मशीन्स हैं, उनको हम बना के एग्रीकल्चर में इनका अच्छे से उपयोग कर सकें। नाउ बात यह है कि हाउ एआई यूज इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में एआई को हम कैसे यूज करेंगे। तो इसमें जैसे हमारा ऑटोमेटेड फार्मिंग एक्टिविटीज, आप देखेंगे एक जमाना था कि जब ओनली देसी हल और एक जोड़ी बैल के साथ एग्रीकल्चर खेती करते थे हमारे फार्मर्स। धीरे धीरे इंडिया ने प्रोग्रेस किया, एंड वी कैन अचीव न्यू हाइट्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एज आउटपुट ऑफ रिसर्च। डिफरेंट टाइप के हमें सीड्स मिल रहे हैं, अच्छी वेराइटियां मिल रही हैं, ऑटोमेटेड हर चीज automated को एग्रीकल्चर में जो हमें, मेरे को लग रहा है मैं ये अपना कैमरा थोड़ा सा ऑफ कर दूं, क्योंकि इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम मैं फील कर रहा हूँ ये कनेक्शन की। ये कहाँ से जाएगा? ओके,
देन ऑटोमेटेड मशीनों की जब हम जरूरत पड़ी और उनका हम यूज करेंगे तो उससे हम एआई का यूज करके हम बेहतर और अच्छी ऑटोमेटेड मशीनें बना सकते हैं और फिर ऑटोमेटेड फार्मिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे ग्रीन हाउसेस हैं, ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम है, ऑटोमेटेड आपका फेंसिंग आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके, और कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेस्ट एंड डिजीज आउटब्रेक बिफोर अकरेंस। if we have any type of technology that can forecast the attack of any type of disease, any type of pest, तो वो हम एआई से वो पॉसिबल कर सकते हैं। बहुत से मॉडल्स हमारे पास ऑलरेडी पहले भी थे जिनका यूज करके हम फोरकास्टिंग करते थे, लेकिन एआई से आप देखेंगे एकदम सटीक सटीक हम लोग उसका फोरकास्टिंग कर सकते हैं, जिससे कि फार्मर्स को वेदर का भी हो सकता है, पेस्ट का भी हो सकता है, डिजीज का भी हो सकता है, जिससे कि फार्मर्स टाइम रहते अपना उन चीजों के लिए अरेंजमेंट कर सकें। नेक्स्ट हो सकता है मैनेजिंग क्रॉप क्वालिटी को भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं। आगे आई विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। नेक्स्ट में भी मॉनिटरिंग बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स एंड स्ट्रेसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फार्मर्स को पता ही नहीं लगता कि उसके क्रॉप क्यों सूख गई, क्या प्रॉब्लम था। तो इस पे रायपुर में आई थिंक इस पे एक बड़ा आईसीआर का इंस्टीट्यूट भी है जो बायोटेक और एबायोटिक इस पे वर्क कर रहा है, स्ट्रेस पे वर्क कर रहा है। तो एआई का अगर यूज करेंगे तो फार्मर्स को क्या, एग्रीकल्चर को बहुत बेनिफिट होने वाला है। देन मशीन विजन सिस्टम एंड फिनोटाइप लीड टू एडजस्टमेंट। हमें बहुत सारी जगह पे जरूरत होती है कि हमें उसका प्लांट का और चीजों का फिनोटाइपिक आइडिया हो, तो मशीन विजन का यूज करके मींस कैमरे और डिफरेंट टाइप के हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरे के इमेजेस को प्रोसेस करके हम अपनी क्रॉप को अच्छे से कर सकते हैं। अभी आप देखें एप्लीकेशंस ऑफ एआई इन एग्रीकल्चर, किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। फर्स्ट यू कैन सी ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम, जो हमारा पिछले स्लाइड में आई वाज डिस्कसिंग ऑटोमेशन। तो ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम अभी बहुत सारे फार्मर्स हमारे ऑटोमेटेड इरिगेशन तो यूज नहीं करते हैं, बट वो कुछ प्रेशराइज टाइप की इरिगेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं, स्प्रिंकलर है, ड्रिप है, एंड उसके साथ फर्टिगेशन भी कर रहे हैं। तो अगर इसकी जगह हम एआई का यूज करें तो क्या होगा कि वो ऑटोमेटेड सिस्टम, हमें या फार्मर को बार बार फील्ड में जाके देखने की जरूरत नहीं है। वो क्या होगा कि फील्ड में सेंसर्स लगे रहेंगे, उनसे डेटा एक्वायर करके और उससे मॉइस्चर स्टेटस हमें पता लगेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो भी इरिगेशन सिस्टम है, पंप है या जो भी वाटर सोर्स है, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होके आपका पूरा इरिगेशन कर देगा। और कितना इरिगेशन करना ये भी हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। अभी आगे बात आएगी उसमें हम लोग देखेंगे प्रिसीजन एग्रीकल्चर। तो जब वो प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उसमें एआई का बहुत बड़ा रोल है। सेकंड हमारा जैसे ड्राइवर लेस ट्रैक्टर्स, आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा, न्यूज़ में पढ़ा होगा, देखा होगा कि ड्राइवरलेस कार की हम लोग बात कर रहे हैं। कई कंट्रीज में ये ट्रायल बेसिस पे स्टार्ट भी हो गया है। हमारे इंडिया में तो अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि उस टाइप के ना तो रोड कंडीशन है और रस हमारे रोड पे बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन फील्ड में हम वी कैन यूज ड्राइवरलेस ट्रैक्टर्स। आप देखेंगे कि जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि कैसे आईएच एंड न्यू हॉलैंड ने 2016 में फार्म प्रोग्रेस, एक जैसे अपने दिल्ली के प्रगति मैदान में टेक फेयर और बहुत सारे फेयर लगते हैं, ऐसे ही वहां पर एक मेला लगा। तो उसमें उन्होंने ऑटोनोमस ट्रैक्टर बनाया जो ड्राइवरलेस था। तो ड्राइवरलेस ट्रैक्टर होने से क्या है कि ड्राइवर या ह्यूमन जब किसी मशीन को ऑपरेट करता है तो उसमें किसी टाइप का इफिशिएंसी डाउन हो सकती है और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन जब मशीन ऑटोमेटिकली वो ऑपरेट हो रही होगी तो उसमें इफिशिएंसी बढ़ जाने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं और गलतियां होने के बहुत कम चांस रहते हैं। तो एग्रीकल्चर में अगर हम ड्राइवरलेस ट्रैक्टर यूज कर पाए, कुछ कंट्रीज में इसको एज ए, जैसे चाइना है, जापान है, इवन आपका एआईटी जो बैंकॉक इंस्टीट्यूट है थाईलैंड में, ये लोग उसको एज ए एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि क्या किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। लेकिन इफ एआई एबल्ड जो ट्रैक मशीन्स होंगे तो उनमें फिर ह्यूमन का उतना इंटरफेरेंस होने की बहुत जरूरत नहीं होगी। थर्ड हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप देखेंगे ग्लिफ इंटेलिजेंट ग्रीन हाउस ऑटोमेशन सिस्टम,
ये जो आप फोर्थ नंबर पे, थर्ड नंबर पे नीचे स्लाइड में देख रहे हैं, इसमें आपको दिख रहा है कि ये ग्रीन हाउस है। इसमें पूरा ऑटोमेशन सिस्टम किया हुआ है कि कभी इसमें सनलाइट आनी है, कितनी आनी है, कितना इरिगेशन देना है, कोई इसमें फर्टिगेशन मतलब न्यूट्रिएंट सप्लाई करना है तो किस तरीके से करना है, किस प्लांट को कितना देना है। तो एक सिस्टम है जिसको गीगास बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है गल्फ इंटेलिजेंट ग्रीन हाउस ऑटोमेशन सिस्टम। ये ऑटोमेशन की हम बात कर रहे हैं उस तरीके से। एक अब बहुत बड़ी ये पूरे इंडिया में एक तरीके से कहें ड्रोन में एग्रीकल्चर में क्रांति आई हुई है। इसको हम लोग ड्रोन क्रांति बोल सकते हैं। एग्रीकल्चर ड्रोन्स आजकल एवरीवेयर वी आर यूजिंग इन अवर फील्ड्स फॉर स्प्रेइंग द योर दिस लिक्विड फर्टिलाइजर्स लाइक नैनो फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। तो इनको करने के लिए हमें ड्रोन्स का उपयोग किया जा रहा है। आई ऑल्सो हैविंग अ ड्रोन ऑफ दिस एग्री ड्रोन। ये 2 साल से आईसीआर ने हमको दिया हुआ है, तो हम लोग इससे फार्मर्स फील्ड पे स्प्रेइंग करवा रहे हैं बेसिकली। ये जो हमारा नैनो फर्टिलाइजर्स हैं इनका है ना, और कुछ पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का भी यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो ड्रोन्स का यूज करके हम इसमें ड्रोन्स का यूज करेंगे तो मैपिंग भी कर सकते हैं, सर्वेइंग भी कर सकते हैं फील्ड में, न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, क्रॉप का स्टेटस क्या है ना, इसमें डस्टिंग भी कर सकते हैं। और आगे डिटेल में अभी मैं और बताऊंगा कि उसको हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। देन रिमोट सेंसिंग बेस्ड क्रॉप एंड हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है। जो ड्रोन हमारे हैं, इफ इनमें हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा लगे रहते हैं जो 3D बेस्ड होते हैं, और इनसे लेजर स्कैनिंग करते हैं। जैसे कि एक तो होता है फोटो खींचना, एक होता है स्कैनिंग करना। तो उसकी स्कैनिंग करते हैं, इसमें मल्टी सेंसर जो कैमरे रहते हैं उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं, और फिर उनसे फिनोटिपिक जो डेटा हमें मिलता है उससे हम क्रॉप की मॉनिटरिंग करते हैं कि भाई ये इसमें कोई डिफिशियंसी है कि नहीं, कोई डिजीज तो आने वाला नहीं है, या किसी चीज की इसमें कमी है ना, उसको हम लोग उस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट है विप्रो इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर डेयरी कैटल। इसमें क्या है कि प्रेस्क्राइब फीड, राशन, मेडिकेशन, हेल्थ, वेलफेयर कंडीशन, ये सारी चीजें जो एक ह्यूमन या एक लेबर एक कैटल को ऑब्जर्व करके नहीं बता सकता, अगर इस तरीके का जो ये विप्रो का ये इंफॉर्मेशन सिस्टम बना है। सिंपल आप देखेंगे कान में एक चिप लगाया हुआ है, ठीक है। और इस कई बार कॉलर्स भी बना देते हैं लोग, कॉलर तरीके से पहना देते हैं। तो जैसे हम अपने हाथ में ये जो आजकल स्मार्ट बैंड्स आप यूज करते होंगे बहुत से लोग, स्मार्ट वॉच आता है, ऐसे स्मार्ट बैंड भी आता है एमआई और अदर कंपनीज का। तो उस वो क्या है कि आपके बॉडी से टच रहता है और आपके पल्स रेट, आपका काफी चीजों को बताता है। लाइक दैट ये या तो कान में इन्होंने इसको पहनाना होता है, या बेल्ट के तरीके से गले में पट्टे के तरीके से लगा के पहना देते हैं। उससे फिर वो आपके एनिमल हेल्थ का सारा डेटा आपके पास अवेलेबल रहता है। तो जो बड़े डेयरी फार्म है, डेयरी है, उन पे इनका हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फेस रिकॉग्निशन सिस्टम फॉर डोमेस्टिक कैटल। सेम उसी का और एक एडवांस वर्जन का है, यहाँ अलहदा एक तरीके का है। ये आप देखेंगे इसमें मैं जो बता रहा था कॉलर पहनाया हुआ है। तो इसमें जैसे किसी फार्म पे, इफ एनी फार्म डेयरी फार्म हैविंग 1000 or 2000 एनिमल्स कैटल्स, अभी उसमें हमें काउंट करना है। तो काउंट तो हम कर सकते हैं, लेकिन इंसानों को तो हम बाई नेम बाई फेस पहचान सकते हैं, गायों को भी पहचान सकते हैं नो डाउट। लेकिन जब 1000 और 2000 गाय रहती है तो उनको पहचानने में कई बार डेटा मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। 5-10 का तो कर सकते हैं, तो उसके लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है, जिससे क्या है कि कितनी गाय पास की, मतलब बाहर हमने चारागाह में भेजा या कितनी वापस आई, कोई गाय मिसिंग तो नहीं है। और किसी गाय को, इसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि 2000 गाय के हर्ड में किस 5 गाय बीमार हैं, तो उनका टेम्परेचर आपके पास डेटा आ रहा होगा, आप उनको अलग कर सकते हैं, जिससे कि बाकी के जो हमारे कैटल्स हैं उनको किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो। कौन सी काऊ हीट में है, कौन सी काऊ प्रेग्नेंट है, तो कितना टाइम उसका हो गया, मतलब ईच एंड एवरी डेटा वट एवर यू नीड टू इम्प्रूव योर डेयरी हर्ड, तो वहां पर आप उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। और मैनुअली करने में उतनी चीजों को हम लोग मैनेज नहीं कर सकते, और अगर इनका यूज कर रहे हैं तो अच्छे से उसको यूज कर सकते हैं। एक नेक्स्ट है ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी। ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी क्या है कि ये एक कंपनी है जिसने ये टेक्नोलॉजी बनाई। और ये क्या है कि सेंसर बेस्ड इनके ये सब इक्विपमेंट्स होते हैं। जैसे वो थिनिंग के लिए
यूज करते हैं, बीडिंग के लिए यूज करते हैं, और इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर ग्रीन हाउस टोमेटो प्रोडक्शन। ये जस्ट एग्जांपल है कि एक ग्रीन हाउस में डिसीजन सपोर्ट सिस्टम लगाया गया, जिसमें ये देखना होता है कि डिटरमाइंस डे एंड नाइट, एयर टेम्परेचर, फ्रूट टेम्परेचर, रेडिएशन, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, फ्रूट लोड, प्लांट डेंसिटी, स्ट्रेस एटसेट्रा। ये सारी चीजें हम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम अगर यूज कर रहे हैं जो एआई बेस्ड है, तो उससे हम ग्रीन हाउस में हमें बार बार भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। हम एक जगह बैठ के वो सारी चीजों का डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा, एंड वी कैन मैनेज द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट्स विद इन दिस ग्रीन हाउस विद मिनिमम डिस्टर्बेंस ऑफ द प्लांट्स एंड सॉइल। हम उसको बार बार भागने की जरूरत नहीं है। हम एक जगह कंप्यूटर स्क्रीन पे, इवन अपने मोबाइल में, यू कैन ऑब्जर्व द थिंग्स एंड यू कैन एडजस्ट द पैरामीटर कि आपको टेम्परेचर बढ़ाना है, CO2 कंसंट्रेशन घटाना है, कि क्या करना है उस तरीके से। ओके, देन नेक्स्ट है आपका ग्रीन हाउस क्लाइमेट कंट्रोल विद एआई बेस्ड टेक्निक्स। ये ग्रीन हाउस में ये थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि सारा कंट्रोल कंडीशन में रहता है। तो वहां पर जो क्लाइमेट कंट्रोलर हम लगाएंगे कि भाई कितना वहां पर टेम्परेचर चाहिए, कितना ह्यूमिडिटी चाहिए, कितना, जैसे अभी ये इधर मैं बता रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई सी गैस का कितना कंसंट्रेशन चाहिए, उसको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं जो एआई बेस्ड टेक्निक्स हैं उनसे। एक हमारा नेक्स्ट है गैस फर्मेंटेशन सिस्टम। एक बीमारी केटल्स में बहुत ज्यादा होती है, जिसको अफारा हम लोग बोलते हैं। अफारा मतलब कि अ, गाय ने या एनिमल ने, किसी भी एनिमल ने कुछ ऐसा खा लिया जिसके जिससे उसके गैस में बहुत ज्यादा गैस प्रोसेस होने, गैस बनने लगा, और फिर कई बार अगर टाइमली उसको ट्रीटमेंट ना दिया गया तो वो फिर उसकी मतलब कैजुअलिटी भी हो सकती है। तो वो सारा सिस्टम आर्टिफिशियली हम बाहर, होता है ना, एक इन विट्रो इन विवो दो चीजें होती हैं, तो उस तरीके से हम जो उसके अंदर डाइजेशन सिस्टम अंदर ये केटल में जो वर्क करने वाला है, उसमें फर्मेंटेशन किस तरीके से हो रहा है, तो उसके रीजन्स को बाहर समझने के लिए एक सिस्टम ये बनाया गया। इसको गैस फर्मेंटेशन सिस्टम बोलते हैं, जिससे कि वो सारी चीजें हम एनिमल्स को ना खिलाएं, जिससे उसके पेट में किसी तरीके का गैस बन सके, या एक तरीके से ये कह सके एक तरीके का टेस्टर है, कोई भी फीड बनाया गया है जो हम एनिमल को फीड कराने जा रहे हैं, उसका जस्ट इधर पे पहले टेस्ट करते हैं कि भाई ये कभी फीड एनिमल में अंदर जाके उसके पेट में फर्मेंटेशन का रेट बढ़ा तो नहीं देगा, जिससे कि वहां पर कुछ गैस टाइप की प्रॉब्लम हो। तो इसका हम यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है हार्बो रोबोटिक्स, जो अभी ब्लू रे टेक्नोलॉजी थी उसी तरीके का ये है। इसमें क्या है कि ये एक इंटरकल्चरल यू कैन से ऑपरेशन है, या बीडिंग मशीन एक तरीके से कहें। इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा बीड है जिसको हमें हटाना है, उसके स्पेसिमेन फोटो, और जो हमारा क्रॉप है उसके स्पेसिमेन फोटो, बेस्ट पॉसिबल फोटोज, नंबर ऑफ फोटोज उसमें डेटा अपलोड कर देते हैं सिस्टम में। उनको हम बोलते हैं सिग्नेचर। ओके, तो वो क्या होता है कि जब ये मशीन फील्ड में रन कर रही होती है, चल रही होती है स्लोली स्लोली, तो वो पहले पिक्चर का जो भी फील्ड में प्लांट है उसका फोटो खींचता है, मतलब स्कैन करता है, और उसको टैली करता है अपने डेटा बैंक से कि ये बीड है और हमारी क्रॉप है। अगर बीड है तो उस पे वो, अगर मैकेनिकल बीडिंग कर रहा है तो उखाड़ के अलग कर देगा, अगर केमिकल स्प्रे कर रहा है तो उससे वो उस बीड पे स्प्रे कर देगा। और अगर फोटो उसने खींचा, अगर वो हमारा प्लांट है, तो वहां पर किसी भी टाइप का वो न तो उसको उखाड़ेगा ना उस पर कोई दवाई छिड़केगा। तो इस तरीके से हम लोग हार्वेस्ट रोबोटिक्स बोलते हैं इसको। हम लोग कई जगह स्ट्रॉबेरी के हार्वेस्टर में भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये तो हार्वेस्टर की हम बात करें, ऐसे बीडर्स भी अवेलेबल हैं जिनसे एग्रीकल्चर में यूज किया जा रहा है। जैसे ये है हमारा स्मार्ट स्प्रे जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, उधर तो वो बीडिंग हार्वेस्टिंग की बात हो रही थी। स्ट्रॉबेरी है, अभी बहुत सारे और चेरी टोमेटो और इस तरीके से जो फील्ड में क्रॉप होती है उनको हार्वेस्टिंग के लिए यूज किया जा रहा है। और ये हमारा स्मार्ट स्प्रेयर जो अभी मैं बता रहा था कि, और स्मार्ट बीड किलिंग रोबोट, ये दोनों के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इनके रियल पिक्चर्स, स्पेसिमेन कॉपीज, बहुत सारी पिक्चर्स डेटा बैंक में डाली जाती है। और जब ये दोनों मशीन फील्ड में चलती है तो पहले वो स्कैन करती है, मतलब कैमरे से उसका फोटो लेता है, और जस्ट इतना फास्ट फास्ट होता है कि उसको टैली करता है कि अच्छा ये बीड है कि नहीं है। बीड है तो कोई उस पर केमिकल स्प्रे करेगा या उसको उखाड़ेगा, नहीं है तो वो आगे बढ़ जाएगा। तो ये कुछ अच्छी भी चीजें हैं जो हम एग्रीकल्चर में इसको यूज कर सकते हैं।
अगर एआई को हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं तो इससे बेनिफिट क्या होने वाला है? There are number of benefits if we can use the AI in our agriculture system. Like AI can improve efficiency. हमारा जो भी वर्क हो रहा है फील्ड में, आपका इवन ह्यूमन की इफिशियंसी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें मशीन जब अच्छे तरीके की मिलेगी तो ये मिस्टर शाहिद अहमद साहब, ये आप लाइन डाल रहे हैं, दिस इज नॉट गुड। ओके, देन अगर एआई यूज कर रहे हैं, इट रिड्यूस्ड हॉस्टाइल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। जो हमारे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होते हैं तो उन चीजों को भी हम बहुत कम कर सकते हैं एआई का यूज करके। ठीक है, एक सिंपल डेटा है कि 2026 तक जो है, द ग्लोबल एआई इन एग्रीकल्चर मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू बी वर्थ 4 बिलियन यूएसडी, मतलब यूएस डॉलर का एक मार्केट है जो 2026 तक बढ़ के एट ए सी ए सी आर ऑफ 25.5%, इस हिसाब से वो रेट से बढ़ रहा है। ओके, और अमेरिका का इसमें एक मेजर शेयर है। और ऐसे ही मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन एंड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, इन चीज़ों का हम यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं, और नो डाउट एग्रीकल्चर में हम अच्छा कर सकते हैं। Okay? फिर आपका हमारा नेक्स्ट है जैसे कैटेगरीज ऑफ एआई इन एग्रीकल्चर, जो सब मैंने अभी बताया, एग्रीकल्चर रोबोट्स हैं जो भी पिछले हम लोग बात कर रहे थे। तो ये ब्लू रिवर्स टेक्नोलॉजी है जिसपे हम लोग अभी 3-4 स्लाइड पहले बात कर रहे थे, तो उसी का ये थोड़ा सा और एडवांस और बड़ी मशीन है। इसको हम लोग एग्रीकल्चर रोबोट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारे काम, ये तो आप देखिए ट्रैक्टर के साथ अटैच हो रखा है। अभी बहुत से चाइना ने और बहुत सारे कंट्रीज ने ऐसे रोबोट्स बना लिए हैं जो आप कभी कभी व्हाट्सएप और यूट्यूब पे देखते भी होंगे, कि वो सारे काम फील्ड के कर सकते हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड में हमें करने होते हैं। आपका प्लाइंग भी कर लेगा, ट्रांसप्लांटिंग भी कर देगा, सोइंग भी कर सकता है, इवन हार्वेस्टिंग और इंटरकल्चरल ऑपरेशन, प्लकिंग का, चाहे वो फ्लावर प्लकिंग हो, फ्रूट्स प्लकिंग हो, वो सारे काम हम रोबोट से कर सकते हैं। सेकेंड में भी क्रॉप एंड सॉइल मॉनिटरिंग। क्रॉप एंड सॉइल मॉनिटरिंग में क्या है कि रिमोट सेंसिंग प्लस हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग प्लस 3D लेजर स्कैनिंग, इन चीजों का यूज करके हम जैसे हमें अगर पहले सॉइल मॉनिटरिंग की बात करें, सॉइल मॉनिटरिंग के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं एआई का और इन सब का यूज करके। सॉइल मॉनिटरिंग मीन्स सॉइल का, जैसे होता है ना, अभी एक अभियान चलता है 5 दिसंबर को, एक मनाया जाता है नेशनल सॉइल हेल्थ डे मनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसमें क्या है कि सॉइल आपको लैब में लानी है, वहां पर आप टेस्ट करवाएंगे, तब फिर उसमें वो उसके बारे में बताएंगे साहब इसमें इन चीजों की कमी है, मतलब एनपीके और जो भी हमारे 16-17 जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें से कितने इसमें हैं और कितने कम हैं, कितने ज्यादा हैं, वो सारी चीजें आपको सॉइल का जब लैब में लाके एनालाइज करेंगे तब बताएंगे। और उसमें आपका मिनिमम 3 डेज लगभग लगता है पूरा डेटा उतना आने में। अगर यही चीज हम इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू, रिमोट सेंसिंग और इन सब के थ्रू कर सकते हैं, जो ड्रोन और हाई स्पेक्ट्रल कैमरा का यूज करके, तो वो एआई की हेल्प से हम ये करेंगे तो आपको सेकंड्स में पूरे फील्ड का सॉइल का स्टेटस पता लग जाएगा कि इसमें सॉइल में किस को खेत के किस कोने में हमारा व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर न्यूट्रिशनल डेटा, क्या है आपके पर्टिकुलर उस कॉर्नर का, उस फील्ड का। देन स्पेशल एंड टेम्पोरल इंफॉर्मेशन भी उससे हमें मिल सकती है। देन डिटेक्ट सॉइल डिफेक्ट्स, deficiencies, specific seed reaction to the different soil weather impact, and ये सारी चीजें हम सॉइल में कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम क्रॉप की मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं कि भाई अभी हमारा जैसे प्लांट है, अब प्लांट का कलर देख के, जैसे हमारे पास कलर चार्ट होता है ना, हम टैली करते हैं कि अच्छा अभी इसका कलर ये है, इसका मतलब इसमें यूरिया की डिफिशियंसी है, अभी ये इस कलर का दिख रहा है प्लांट, तो ये चार्ट से मैच करता है, अभी इसमें इस चीज की डिफिशियंसी है। तो वो सारे काम हम क्रॉप एंड सॉइल मॉनिटरिंग इस एआई का यूज करके मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हमें वो रिजल्ट मिलता है, उसके हिसाब से हम जल्दी जल्दी अपने डिसीजन लेके जो हमें करना है उस तरीके से कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है, जैसे जर्मन बेस्ड टेक स्टार्टअप है पीट, इससे से इन्होंने प्लांटिक्स बनाया। इसमें सिंपल, अभी तो आप देखेंगे बहुत सारे यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे कि बहुत से एप्लीकेशन ऐसे आप अपने कैमरे में लैपटॉप सॉरी मोबाइल में डाउनलोड करिए और उसके बाद पिक्चर खींच के उस पर अपलोड करिए, वो आपको बताएगा कि आपके इस फील्ड में, इस प्लांट में कौन सा न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है या कौन सा डिजीज लगा हुआ है, इसके लिए आपको क्या मीजर्स अपनाने चाहिए, कौन सा इसमें एग्रोकेमिकल डालना है जिससे कि आप इसको
ठीक कर सकते हैं। देन प्रिडिक्टिव एनालिसिस, ये बहुत जरूरी है हमारे एग्रीकल्चर के लिए। प्रिडिक्टिव एनालिसिस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अभी जस्ट मैं एक आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस पे मैं बाद में आऊंगा स्लाइड में जो लिखा हुआ है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। सर मैं एक अभी लेक्चर ऑनलाइन दे रहा हूँ, मैं फ्री होते ही आपसे कॉल बात करता हूँ सर। यस सर, प्लीज प्लीज मैं करता हूँ सर, ओके। सॉरी, ये फोन रिसीव करना भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहता है। या तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस बहुत जरूरी है हमारे एग्रीकल्चर के लिए, इंडियन एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि होता क्या है, जैसे आई एम जस्ट गिविंग माय एग्जांपल। मेरा जो नेटिव प्लेस है, आई एम फ्रॉम इटावा, मींस सेंट्रल यूपी में मेरा जो है होम टाउन है, और उससे लगा हुआ हमारा जिला है फर्रुखाबाद, आगरा। तो वो पूरा बेल्ट जो हमारा है वो पोटैटो बेल्ट के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे मेरे को लग रहा है कि इंडिया का सबसे ज्यादा पोटैटो प्रोडक्शन होता है वहां पर। मेरे चाइल्डहुड में मैंने देखा हुआ है और पर्सनली फील भी किया हुआ है कि एक साल तो आलू सारे फार्मर्स बड़ा अच्छा करते थे, बड़ा अच्छा पैदा हुआ। एंड क्या होता था, मार्केट में उस टाइम वो 50 पैसे किलो भी नहीं बिक पाता था। ठीक है, उससे क्या होता था, सारे फार्मर्स बड़े मतलब डिसअपॉइंट होते थे, और अगले साल कोई भी पोटैटो नहीं करता था। अगले साल आलू फिर 20 रुपये, 20 रुपये तो नहीं, मतलब 2 रुपए किलो बिकता था। अच्छा, अब फिर अगले साल लगा किसानों को, नहीं नहीं भाई इस बार महंगा बिका, फिर सबने कर लिया, फिर अगले साल वो 50 पैसे किलो बिका। कहने का मतलब ये है कि वो प्रिडिक्शन, उनको आइडिया ही नहीं होता था कि कितना पैदा करेंगे और मार्केट की डिमांड क्या होगी, जिससे कि वो अपना उसका सिस्टम उनको समझ में आए। ये मैं बात कर रहा हूँ आज से करीब 30 ईयर बैक, या मोर देन 30 ईयर बैक। ठीक है, तो वो सारे चीज प्रिडिक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे एग्रीकल्चर में। तो अगर ये हमें पता रहे कि अ, हमारा ये एरिया है, इस एरिया में हम पर्टिकुलर कोई भी क्रॉप XYZ हम ग्रो कर रहे हैं, और जो कल्टीवेशन होके जो प्रोडक्शन हमें मिलने वाला है वो कितना होगा, और उसके हिसाब से मार्केट की डिमांड क्या है, मार्केट में कितने की जरूरत है, तो उसके हिसाब से फिर आप अपना, या तो आप पहले प्रोडिक्ट कर लें तो आप उतने कम एरिया में लगाएं। जैसे अगर वो उस टाइम हमारे यहाँ के किसानों को पता होता कि भाई अगली बार वो बहुत कम रेट पे बिकने वाला है, तो आधे लोग ना लगाते या कम कम लगाते अपने फील्ड में। तो ये प्रिडिक्शन का इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर में। तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस अगर एग्रीकल्चर में हो सकती है तो एआई की हेल्प से हो सकती है। और इसलिए जैसे आप देखेंगे एक ई वेयर करके एक डेटा मॉडल इंसाइट्स बनाया गया, इसका यूज करके बहुत सारे हमारे इंडियन स्टेट्स, जैसे कर्नाटका स्पेशली, इसको यूज करके और पैडी के प्रोडक्शन को वो प्रिडिक्टिव एनालिसिस करते हैं, उससे फिर वो रेट उसका डिसाइड करते हैं। अच्छा, टाइम थोड़ा सा जल्दी निकल रहा है, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। अभी हम एआई पे डिस्कशन कर रहे हैं। अभी मैं ये इस पे आ जाते हैं। प्रिसीजन फार्मिंग जो है, प्रिसीजन फार्मिंग का मतलब होता है कि एवरी इनपुट ऑफ एवरी फार्मिंग में जो हम यूज करते हैं, दैट शुड बी प्लेस्ड एट राइट प्लेस एट द राइट टाइम एट राइट इनपुट, राइट अमाउंट एंड राइट वे से उसको हम यूज करें। इसका मतलब एक्यूरेट एंड कंट्रोल टेक्निक, इसको हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं। तो जब हम प्रिसीजन फार्मिंग की बात करें, जो राइट 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 जो मैं बता रहा हूँ कि राइट अमाउंट राइट प्लेस पे राइट मेथड से और राइट वे के थ्रू दिया जाए, तो उसमें आप देखेंगे ड्रोन्स भी आ रहे हैं, सैटेलाइट भी आ रहा है ना, और सारी मशीन्स को यूज किया जा रहा है। तो इन सारी चीजों को करने के लिए हमें एआई का बहुत इंपॉर्टेंस है, तभी हम कह सकते हैं कि हम एग्रीकल्चर में अच्छा कर सकते हैं। एक बात आपने सुनी होगी, लोग अक्सर बोलते हैं कि एग्रीकल्चर को एग्रीकल्चर के तरीके से न करके एक इंडस्ट्री के तरीके से करना चाहिए। फॉर दैट, अगर हम इंडस्ट्री के तरीके से खेती को करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें एआई की बहुत जरूरत है। ठीक है, अभी नाउ आई गो टू द सिंपल आईओटी, क्योंकि टाइम बड़ी जल्दी से बीत रहा है, आई डोंट नो। यस, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं आईओटी। तो आईओटी क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, इज द नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स एम्बेडेड विद इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, सेंसर्स एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी विच एनेबल दीज ऑब्जेक्ट्स टू कलेक्ट एंड एक्सचेंज डेटा। अभी हम एआई पे बात कर रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उसको कैसे यूज करेंगे। आईओटी क्या है कि जो बहुत सारी
चीजों को, बहुत सारी चीजों में जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, सॉफ्टवेयर है, सेंसर्स है, नेटवर्क कनेक्टिविटी है, और इनसे हम एक किसी ऑब्जेक्ट का डेटा कलेक्ट कर सकें, एक्सचेंज कर सकें, नॉट कलेक्ट से एक्सचेंज कर सकें, तो उसको हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। इसके जो फादर हैं या जनक हैं वो केल्विन एस्टन हैं, और जिनका जन्म 9 अप्रैल को हुआ था, और वर्ल्ड आईओटी डे जो है वो 9 अप्रैल को इनके बर्थडे की वजह से मनाया जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर में इसको कैसे यूज करते हैं हम लोग देखेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, अच्छा, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया वहां पे 4-5 चीजें बताई। तो इसमें आपका सेंसर रहता है, कनेक्टिविटी रहता है, एंड प्यूपिल एंड प्रोसेस। सेंसर्स होंगे, उनको हमें कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के बाद जो लोग हैं वो लोग इसको प्रोसेस करेंगे, मतलब यहाँ पर ह्यूमन का इंटरफेरेंस जरूरी है। आप देखेंगे ना, सेंसर है, कनेक्टिविटी है, पीपल है, और यहाँ पर बीच में आपका आईओटी है। तो इस तरीके से आईओटी वर्क करता है। ये गेटवे ऑफ फ्यूचर फार्म। अगर हम अब देखेंगे, हर जगह स्मार्ट बात करते हैं कि स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट हॉस्पिटल है, स्मार्ट हाईवे है, स्मार्ट फैक्ट्री है, इवन स्मार्ट पीपल्स आर देयर। तो इसी तरीके से हम एग्रीकल्चर को भी अगर स्मार्ट बनाना चाह रहे हैं, देन वी हैव टू यूज और अप्लाई एआई एंड आईओटी फॉर स्मार्ट एग्रीकल्चर। ओके, इसका प्रोसेस पे समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर आप फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ आईओटी, कहाँ पे हम आईओटी को यूज कर सकते हैं। बहुत सारे यूजेज हैं, जैसे बिल्डिंग एंड होम ऑटोमेशन, मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल एंड हेल्थ केयर, मीडिया। कुल मिला के जहां जहां पे आपको किसी चीज की जरूरत पड़ रही है, एवरीवेयर यू कैन यूज दिस आईओटी। ओके, जैसे यहाँ लिखा ना, यू नेम इट एंड यू विल हैव इट टू इट इन आईओटी। आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपको जरूरत है आईओटी के थ्रू। आईओटी को हम हर जगह यूज कर सकते हैं। एक जो अभी मैं बात कर रहा था कि इंडस्ट्री 4.0, ऐसे ही फूड मैन्युफैक्चरिंग 4.0, इसमें आप देखें ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स एट द सर्विस ऑफ फूड मैन्युफैक्चरिंग। एआई और आईओटी का कैसे यूज करके हम इसमें चीजों को बेटर बना सकते हैं फूड प्रोडक्शन में। जैसे आप देखेंगे, इसको 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज सप्लाई चेन, सेकंड इज प्रोडक्शन डेटा, एंड थर्ड इज कंज्यूमर डेटा। इससे हम ट्रेसेबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये चीजें आप देखेंगे जहां पर सप्लाई चेन, मतलब सप्लाई हो रहा है, सप्लाई कर रहे हैं लोग, ठीक है। इसके बाद जो चीजें प्रोड्यूस्ड हुई उन पे प्रोडक्शन डेटा यहाँ से हमें मिलेगा, जैसे प्रोडक्शन शेड्यूलिंग है, फिनटेक सर्विसेज, यहाँ से जो हमें डेटा मिलेगा। इसके बाद फाइनली वो कंज्यूमर्स के पास जा रहा है। तो इससे हम ये डेटा पता कर सकते हैं कि मार्केट से या फार्म किसी पर्टिकुलर फार्मर्स के यहाँ पर कितना वीट पैदा हुआ या मिल्क पैदा हुआ, उसको कहाँ से परचेज करके कहाँ पे लेगा, और फ्यूचर में किसी को कहीं प्रॉब्लम होने वाली तो हम ट्रेस कर सकते हैं कि वो किस फार्मर के यहाँ से लिया गया था, जिससे कि हम इसको हम लोग ब्लॉकचेन सप्लाई भी बोलते हैं। ठीक? फिर आप अगला देखेंगे, आईओटी टेक्नोलॉजी इन द फूड सप्लाई चेन। ये जो अभी पीछे मैंने बताया उसी को थोड़ा सा और एलोबोरेट किया गया, इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, फिर अगेन आई विल डिस्कस अबाउट द ट्रेसेबिलिटी। इसमें आप देखेंगे, फ्रॉम इंडस्ट्री 4.0 टू एग्रीकल्चर 4.0, a framework to manage product data in agri food supply chain for voluntary traceability। ट्रेसेबिलिटी आज की डेट में दो ही चीजें हमारे कंट्री को, आई थिंक, डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट कर सकती हैं। फर्स्ट वन इज ट्रेसेबिलिटी, सेकेंड वन इज अकाउंटेबिलिटी। अगर हमारे देश में हर इंसान को कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, सभी की है, लेकिन पीपल कैन नॉट डू द थिंग्स। इसी तरीके से हमें ट्रेसेबिलिटी अगर पता हो कि हम जो चीज कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उस वो कहाँ पैदा हुई है, तो उससे फिर बहुत सी जो बीमारियां हो रही हैं, आप देखेंगे एवरीवेयर पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द कैंसर, वेरी यू कैन से खतरनाक बीमारी है। तो कैंसर क्यों हो रहा है, उसके रीजंस के लिए डॉक्टर आज ट्रेसेबिलिटी को अप्रोच करते हैं कि भाई अच्छा पूछते हैं आपने क्या खाया है, तब ये खाया, कितने दिनों से खा रहे हैं, तो बताता है मरीज इतने दिनों से खा रहे हैं। अच्छा, कौन कौन घर में खाता है, आपके यहाँ पहले क्या लोग ये खाते थे, मतलब जस्ट, तो डॉक्टर को भी ये आइडिया होता है कि अच्छा ये कहाँ से प्रोड्यूस्ड हो रहा है, वो प्रोडक्शन जहाँ मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा मेट्रोपॉलिटन सिटी के पास में कोई ऐसा फार्म है जहां पर पॉल्यूटेड वाटर से उसको इरिगेट कर दे रहे हैं, और वहां से हम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कंज्यूम कर रहे हैं। आपका रूट, जैसे आपका कैरेट है, आपका मूली है, और चीजें इनको एज ए सैलड हम यूज कर रहे हैं। तो क्या होता है कि वहाँ पर इतने सारे हैवी मेटल्स उन पानी में रहते हैं, और उन पानी से पैदा किया हुआ गाजर मूली हम जब खाएंगे तो हमें भी फिर वो सारी चीजें होती हैं। तो ये
ट्रेसेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम उसको यूज कर रहे हैं। ओके, फिर हमारा आता है कि आईओटी को और एग्रीकल्चर में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, लाइक स्मार्ट कंज्यूमर एप्लीकेशन फॉर फूड अलर्ट एंड इन्वेंट्री रिमाइंडर्स। इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं कि स्मार्ट जो कंज्यूमर होगा उसका अगर एप्लीकेशन करेंगे कि किस कंज्यूमर को किस चीज की कब रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जांपल आप मोबाइल में अपना देखेंगे, आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं, ब्लिंकिट आ गया है जो क्लेम करता है कि 5 to 7 मिनट में आपके यहाँ पर सप्लाई देगा, फ्लिपकार्ट है, जोमेटो है, स्विगी है। तो इस तरीके की चीजों को यूज करके हम एग्रीकल्चर में भी इन चीजों को जरूरत के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। ड्रोन्स फॉर एफिशिएंट क्रॉप मैनेजमेंट जो मैंने अभी डिटेल में डिस्कस बताया, सेल्फ ड्राइविंग ट्रैक्टर्स के बारे में भी मैंने ऑलरेडी बताया आपको। नाउ कुछ हम एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस रहते हैं उसमें डिटेक्ट डिजीज को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। एक जैसे सिंपल जो हमारे एग्रीकल्चर के या इंजीनियरिंग के बच्चे हैं या जो भी लोग हैं वो आप समझेंगे कि एक इलेक्ट्रॉनिक नोज कॉन्सेप्ट होता है। मतलब जो हम नॉर्मल हमारी नोज होती है ऐसी एक इलेक्ट्रॉनिक नोज बनाई गई, उसमें भी इन्हीं एआई वगैरह का यूज किया गया। तो हम एक इंसान कितनी चीजों को सूंघ के बताएगा और शायद वो कोई डेटा गलत भी दे दे। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक नोज यूज कर रहे हैं तो उस ऐसे इलेक्ट्रॉनिक टंग भी है, तो उनसे हम चीजों को अच्छे से आइडेंटिफाई करके वो प्रॉब्लम पता चला सकते हैं कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है। ऐसी एक TADD है, ये ट्रेनेबल एनोमली डिटेक्शन एंड डायग्नोस सिस्टम है। इसमें आप देखेंगे कि इनको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। पोटैटो को, किसी भी फ्रूट को हम बिना काटे उसके अंदर में क्या प्रॉब्लम होने वाला है उसको हम लोग अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन चीज़ों का यूज करके। मेरे को याद है जब मैं PhD कर रहा था मेरठ में, उस टाइम फ्रूट फ्लाई का एक प्रोजेक्ट ICR ने पूरे इंडिया में चलाया, स्पेशली आई थिंक इंडिया में नहीं, यूपी में, स्पेशली वेस्टर्न यूपी में। क्यों चलाया कि वहां पर मैंगो बड़ा अच्छा होता है, मेरे को वैरायटी का नाम अभी याद नहीं आ रहा। तो वो सारे का सारा मैंगो एक साल US भेजा गया और जाने में उसको लगभग मेरे हिसाब से 1 महीने का टाइम लग गया। तो यहाँ से इंडिया से जो भरा गया था, लोड किया गया था मैंगो, वो बढ़िया था। और जब वहां पर अनलोड हुआ तो वो पूरा अंदर से सड़ चुका था। तो पूरा वो वहां से वापस हुआ और वो सारा सारा समुद्र में फेंक दिया गया। कहने का मतलब वो लोगों को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ उस टाइम। फिर ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी पे वर्क स्टार्ट हुआ और उसमें उन्होंने देखा कि हर मैंगो को स्कैन करके भेजते हैं। स्कैनिंग में पता चल जाता है कि अंदर में कोई इसमें कीड़ा वगैरह तो नहीं है। जो फ्रूट फ्लाई होती है वो फ्रूट फ्लाई उसमें अपने अंडे दे देती थी। तो स्टार्टिंग में तो कुछ समझ नहीं आता था और कुछ टाइम के बाद उसमें वो फिर कीड़े बन के वो फिर सारे मैंगो को डिस्ट्रॉय कर देते थे। तो इस तरीके से और सारी टेक्नोलॉजी है, देखते हैं क्या क्या हम बता सकते हैं। ऐसे आप देखेंगे इलस्ट्रेशन ऑफ द फ्यूचर एग्रीकल्चर विद द इंडस्ट्री 4.0 रेवोल्यूशन। एक इस स्लाइड से आपको शायद कुछ ज्यादा समझ में आ सके। आप देखेंगे इसमें 4 सेगमेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन, सेकेंड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड वन इज कंजम्पशन एंड इन सबको इंटरकनेक्ट करता हुआ रूरल टूरिज्म एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे AI का यूज है, डीप लर्निंग का यूज है, मशीन लर्निंग का यूज है, बिग डेटा। आजकल बिग डेटा पे बहुत ज्यादा बात की जा रही है। अभी IIT IIT गुवाहाटी ने आई थिंक बिग डेटा पे एक सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट किया है, बिग डेटा एंड डेटा एनालिसिस पे। तो देखने में तो सुनने में लगता है कि भाई बिग डेटा मतलब कुछ डेटा डे जैसा कुछ क्या करना होगा, लेकिन इसमें इतना ह्यूज डेटा, क्योंकि सारा काम जो AI और IoT का है वो पूरा डेटा का ही है। डेटा को अगर हम अच्छे से एनालाइज कर सके तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं और मिल भी रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे प्रोडक्शन सेक्टर में आप देखेंगे AI और IoT का कहाँ यूज है। ड्रोन्स हैं, ऑटोमेटिक प्रोडक्शन रोबोट्स है, प्लांट और फैक्ट्री अभी ऑटोमेटेड मोड में हो रही हैं, ऑटोमेटेड प्रोडक्शन रोबोट्स हैं जो अभी मैं बता रहा था उनके बारे में। फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जैसे हम देखेंगे ERP सिस्टम आजकल यूज कर रहे हैं लोग। हर चीज आप कंप्यूटर पे देख सकते हैं, आपका मटेरियल कहाँ पहुंचा कहाँ नहीं पहुंचा। उसके बाद फिर कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इसमें ईल्ड इंफॉर्मेशन है, डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स हैं वो इसमें बिजी रहते हैं। और इन सारी चीजों को कनेक्ट करते हुए अभी करीब 5 साल से इंडिया में, या इससे पहले भी चल रहा था लेकिन उतना नहीं था, अभी आजकल रूरल टूरिज्म पे हम लोग बहुत बात करने लगे हैं। तो रूरल टूरिज्म पे कुछ नहीं है, आप बढ़िया से अपना खेत में लोग आएंगे, आप स्टे होम बनाइए, होम स्टे बनाइए या गेस्ट हाउस या रेस्ट हाउस कुछ बनाइए और वहां से भी आप अर्न करिए। तो इस तरीके आप देखेंगे कि जो हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड जो है जो फ्यूचर एग्रीकल्चर विद द इंडस्ट्री 4.0, इंडस्ट्री के साथ कोलेबोरेट करके, तो अभी हम कह सकते हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो भी 4.0 इक्वल टू
आपका इंडस्ट्री के हिसाब से हो जाता है। जो मैं बता रहा था कि कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो लिमिटेशंस एआई और आईओटी को यूज करने की ये है कि हमारे इंडिया में जो ज्यादातर जो एग्रीकल्चर करने वाले लोग हैं वो कम पढ़े लिखे लोग हैं, गांव में रहते हैं, एंड दे आर नॉट अवेयर अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजी। अच्छा, नई टेक्नोलॉजी जो भी आ रही है उनके सारे इंस्ट्रक्शंस बेसिकली इंग्लिश में होते हैं। तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, उनमें सब इंग्लिश में है। तो फार्मर्स को लोकल लैंग्वेज में, नॉट ओनली इन हिंदी, जो हमारे रूरल कम्युनिटी है अलग अलग स्टेट्स में जो अलग अलग लोकल लैंग्वेज यूज करते हैं, वो सारे डेटा हमें इंग्लिश के बजाय लोकल लैंग्वेज में हमें देने हैं। तो ये लिमिटेशन ये है, इसको हमें सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। दूसरा, जो भी एआई और आईओटी बेस्ड चीजें हैं उन वो थोड़ी सी कॉस्टली हैं। तो गवर्नमेंट को उन सारी चीजों पे सब्सिडी देने की जरूरत है। नो डाउट गवर्नमेंट इज ऑलरेडी प्रोवाइडिंग सब्सिडी, लाइक ड्रोन्स 10 lakhs का है, और अगर कोई फार्मर या कोई भी उसको एक्सपाइजेड परचेज करना चाह रहा है तो सीधा सीधा 50% की सब्सिडी है। इसके अलावा और सी छोटी छोटी मशीनें हैं, उन उन जो एआई बेस्ड हैं उन पे भी सब्सिडी देने की जरूरत है। तो ये जो लिमिटेशन है इसको भी खत्म किया जा सकता है। तीसरा है कि जो मशीन इक्विपमेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारा मोबाइल ही है, ये मोबाइल भी एक तरीके से आपका एग्रीकल्चर का हेल्पफुल इक्विपमेंट हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। तो इनका रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए भी बहुत ज़रूरत है। तो ये जो लिमिटेशन है कि भाई उसका रूरल एरिया में उसका मेंटेनेंस सेंटर नहीं है, रिपेयर सेंटर नहीं है, सर्विस सेंटर नहीं, तो उन चीज़ों को भी हमें वहाँ पे ठीक करने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट को इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है। और इसके साथ साथ जब हम चीज़ों को यूज़ करते हैं तो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सरकारी मशीनरीज का यूज़ किया जाता है, तो उसके बजाय हम प्राइवेट सेक्टर के लोगों को यूज़ करें, जिससे कि उन चीज़ों को अच्छे से जो एंड यूजर है, जो हमारा फार्मर है, उसको वो अच्छे से यूज कर सके। ठीक है। इसके साथ साथ स्कोप भी हमारा एग्रीकल्चर में है एआई का। जैसे आप देखेंगे ओनली 4% एडिशनल लैंड विल कम बाय 2050। इतना कम लैंड की ही जरूरत, एडिशनल लैंड की जरूरत पड़ेगी हमें, जो हमें जो हमारी 10 बिलियन पॉपुलेशन होने वाली है यूएनओ और एफपीओ के एफएओ के हिसाब से। तो अगर हम एआई और इसका यूज करेंगे तो हमें सिर्फ 4% जो करंट में लैंड है उससे मोर देन ओनली 4% एक्स्ट्रा लैंड की जरूरत होगी। अगर हम इन टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो हम, तो आने वाली हमारी 10 बिलियन पॉपुलेशन होने वाली है, नियर अबाउट 10 होगा, 9.5 9.2 कुछ अलग अलग लोग डेटा देते रहते हैं, जो 2050 के आसपास होगा। तो हम अच्छे से उन सारी चीजों को फुलफिल कर पाएंगे, हम सभी का पेट भर पाएंगे, अगर हम सही से एआई और आईओटी का यूज कर सके। तो टाइम हो गया है, अभी चीजें तो काफी हैं लेकिन कोई नहीं। ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर ही चुका हूँ। एक टेक होम मैसेज हमारा ये है कि एआई और आईओटी जो एडवांस टेक्नोलॉजी हैं, इनमें हमें छोटे छोटे कोर्सेज भी स्टार्ट करने चाहिए। फॉर एग्जांपल 3 मंथ का कोर्स, 15 डेज का कोर्स, 1 मंथ का कोर्स, जिससे कि अभी अगर हम चाहें कि हम फार्मर्स को एकदम टेक सेवी बना दें, उनको सारा टेक्नोलॉजी हम सिखा दें, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। और हम ये चाहें कि फार्मर्स को 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स या ऐसा कुछ कोर्स दें जिससे कि पूरा मास्टर हो जाए, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी फार्मर के पास इतना टाइम नहीं है। ही और सी कैन कम ज्वाइन द कोर्स एंड आफ्टर दैट वो उसको यूज कर सके। तो सिंपल ये है कि सारे हमारे जो एंड यूजर्स हैं, हमें उनको मैं कैमरा ऑन Sorry कर to रहा हूँ अभी। interrupt, sir. Sir, हाँ बेटा। हाँ। हाँ जी। जी, sir. You are the sole speaker for today, sir. You can take time, like you can take like 15 ओके to ओके 20 minutes more if you want. जी, sir. ओके ओके, तो फिर मैं पहले अपना मैसेज खत्म कर लूँ, फिर मैं वापस जाता हूँ। ओके। जी, sir. ओके। तो जो हमारे एंड यूजर्स हैं, तो व्हाट वी शुड डू, या गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इस तरीके की पॉलिसी बनाए कि जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो टेक्नोलॉजी फार्मर्स को प्रोवाइड करने के साथ साथ या प्रोवाइड करने के पहले ग्राम पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, या उनके विलेज लेवल पे, डोर स्टेप पे उनको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाए। क्योंकि कोई फार्मर स्कूल जाने के हिसाब से कोई तैयार होकर कभी नहीं आने वाला, क्योंकि वो टाइम ही नहीं है उन फार्मर्स के पास। सो
जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको हमें अच्छे से एंड यूजर्स को समझाना है, उनको प्रैक्टिस करवानी है, दैट्स कि वो अच्छे से उनको यूज कर सके। और जो हमारा, जो मैं बात कर रहा था कि जो सर्विस सेंटर्स हैं, रिपेयर सेंटर्स हैं, उनको जगह जगह और एस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए, जो किसी मशीन या किसी नई टेक्नोलॉजी को लेके वो फिर गांव की, शहर की तरफ ना भागता रहे। उनके अपने उस टाउन में, उनके ग्राम पंचायत लेवल पे एक ऐसा वर्कशॉप हो, एक ऐसी शॉप हो जहां पर वो उन चीजों को ठीक कर सके। तो ये तो मैसेज में देना चाह रहा था। इससे जो बताने वाली चीजें थी वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं था। देन ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम, इसको मैं जस्ट एक्सप्लेन करना चाह रहा था। इन दिस स्लाइड यू कैन सी हाउ वी कैन यूज द ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम इन अवर फील्ड। वी कैन यूज दिस सिस्टम फॉर ऑर्चर्ड्स as well as for our plain fields. For the, you can say, if you are cultivating the cereal crops or any other crops, then you can also use this automated system. In this system what is happened, आप देखेंगे एक इसमें मेन लाइन, आप एक वाटर सोर्स दिख रहा है, मतलब ओवरहेड टैंक है, या कोई भी वाटर सोर्स आपका हो सकता है। यहाँ से पूरे फील्ड में ये पाइप आपको मतलब डालनी पड़ेगी। पाइप डालने से क्या होगा कि फिर आप वो सारा कंट्रोल वे में आप यूज कर सकते हो। ओके, इसमें पहले आपने मेन पाइप डाल दी, फिर लेटरल डाल दिए। ये आपका कुछ भी सिस्टम हो सकता है, आपका ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो सकता है, या आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम होता है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, आप देख रहे हैं इस तरीके का सेंसर ये लगा हुआ दिख रहा है, इसको वाल्व कंट्रोल, जीएसएम कंट्रोलर, वायरलेस रेडियो, दिस इज सेंट्रल नोड। यहाँ पर ये सेंट्रल नोड है, और यहाँ पर ये है हमारा वायरलेस नोड। ओके, इसमें आप देखेंगे फील्ड में जगह जगह हमने कुछ सेंसर्स लगाए हुए हैं, या इनको कंट्रोलर कहें, वो लगाए हुए हैं। सेंसर्स क्या करेगा कि पानी, मॉइस्चर लेवल, पानी में, उस जमीन में उसको लगा के रखेंगे, एंड that will tell the moisture level, or that will measure the moisture level of the field. फील्ड में कितना मॉइस्चर है वो उसको रेगुलर मेजर करता रहेगा, और वो डेटा आपको प्रोवाइड करता रहेगा। इफ, मतलब एक स्टेज जब आएगी जब वाटर लेवल आपके जो प्लांट की रिक्वायरमेंट है उससे नीचे जब जाएगा, तो वो तुरंत ये कंट्रोलर इसको वायरलेस नोड के थ्रू, ये रेडियो के पास वो सेंसर सिग्नल भेजेगा कि भाई यहाँ पर वाटर लेवल अभी कम हो गया है। ठीक है, तो ये सिस्टम तुरंत आपका, इसको सिस्टम जो पानी इरिगेशन सिस्टम को ऑन करेगा, और पर्टिकुलर उस प्लांट पे वो इरिगेशन देगा, पानी देना स्टार्ट करेगा, और कितना देगा, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सेंसर वहां पे ऑलरेडी लगा हुआ है। एंड दैट सेंसर विल रेगुलरली मॉनिटर द मॉइस्चर लेवल, और जैसे ही ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल पहुंच जाएगा वैसे ही वो सिग्नल भेजेगा कि ठीक है, यहाँ पर मॉइस्चर लेवल बराबर हो गया है जितना चाहिए, अभी आप पानी बंद कर दो। तो ये आपका इंडिविजुअल प्लांट के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम। ये तो सिंपल आपका ऑर्चर्ड के लिए हो गया। ऐसे ही आप क्रॉप में, सीरियल क्रॉप्स में भी यूज कर सकते हैं। सीरियल क्रॉप्स में क्या है कि वो प्लांट टू प्लांट तो नहीं देगा, वो फिर रीजन बना देगा। रीजन मीन्स 1 मीटर स्क्वायर का कोई रीजन होगा, या 10 मीटर स्क्वायर का कोई रीजन होगा, तो वहां पर वो सेंसर्स आप लगाओगे, उस हिसाब से वो डेटा ट्रांसफर करेगा, वो मैसेज देगा कि भाई यहाँ पर नमी कम हो गई, अब यहाँ पानी की रिक्वायरमेंट है, एंड वो ऑटोमेटिकली आपका वो इरिगेशन सिस्टम ऑन हो जाएगा, और वहां पर वो पानी उससे दिया जा सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ एक खास चीज है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ भी रहे होंगे अभी, कि फर्टिगेशन सिस्टम, इरिगेशन और फर्टिगेशन सिस्टम। तो क्या होता है कि वैसे तो हम दानेदार फर्टिलाइजर वैसे छिड़कते थे, आज हम बात कर रहे हैं नैनो फर्टिलाइजर्स की। तो जो हम ड्रोन से अप्लाई कर रहे हैं, फील्ड में स्प्रे कर रहे हैं, तो हम इस वाटर टैंक में वो फर्टिलाइजर ऐड करके, और जो सेंसर हमारे हैं उनको कुछ बिना छेड़े इसमें वो नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, सागारिका, जितने भी नैनो फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हैं, उनको हम फील्ड में जो हमारी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से उसको हम अप्लाई करके, और फिर अच्छे तरीके से उसको फर्टिगेशन भी दे सकते हैं फील्ड में हम। देन रिमोट सेंसिंग क्रॉप, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। हाँ, पिक्चर से आप समझना चाहें तो इस तरीके से आप देखें कि इसमें आप देखें, ये सीन जो हमें यहाँ दिख रहा है, ये पूरे फील्ड में कहीं पे भी ऐसा हो सकता है। जहां पर ग्रीन हमें दिख रहा है वहां पर
ज्यादा अच्छे प्लांट्स हैं जहाँ येलो दिख रहा है, मतलब वहां पर स्ट्रेस्ड कंडीशन में है या कोई इनमें हेल्थ इश्यूज हैं प्लांट में। तो इसको हम इमेज के थ्रू, जो पिक्चर्स खींच के स्कैनिंग करके जो डेटा बैंक में रहेगा उससे वो टैली करके वो आप मॉनिटर कर सकते हैं कि फील्ड में किस जगह पे क्या डिफिशियंसी है और उसमें हमें क्या एप्लीकेशन देना है, कौन सा जिंक की डिफिशियंसी है, यूरिया की डिफिशियंसी है, या कोई बीमारी है या कोई कीड़ा लगने वाला है। तो इस तरीके से हम इसकी क्रॉप हेल्थ मॉनिटर को एआई की हेल्प से कर सकते हैं और साथ साथ उसका सोल्यूशन भी वहां पर दिया जा सकता है। सेम इसमें आप देखेंगे डिफरेंट टाइप के लीव्स हैं। ये कैप्चर लीफ, सेगमेंटेड लीफ एंड मार्क लीफ। ये आप देखेंगे, ये तो स्केन, ये दूसरी पिक्चर है नीचे, ये दो तरीके के लीफ को पिक्चर कैप्चर किया गया और इसके बाद फिर सेगमेंट करके उसको देखा तो ये इमेज प्रोसेसिंग में इस तरीके से दिख रहा है एंड मास्क्ड लीफ में ये इस तरीके से दिख रहा है। तो इससे क्या है कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में क्या है, लीफ हैज नो डिजीज। इस तरीके से जब ये प्रोसेस करके आएगा तो हमें आंसर पता लगता है कि इसमें कोई डिजीज नहीं है, लीफ हैज डिजीज, इस तरीके से लीफ में डिजीज है। अच्छा, कहने को हम ये भी कह सकते हैं कि साहब ये तो ऑटोमेटिकली दिख ही रहा है कि इसमें डिजीज है इसमें नहीं है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है एआई का यूज करना है। अच्छा, ये तो हम अपनी आंखों से एक पत्ती को देख के बता सकते हैं ना, एक प्लांट में 10 पत्तियों को देख के बता सकते हैं। पूरे फील्ड में इस तरीके के क्या रिजल्ट हैं, वो कितना हम बैठ के काउंट करेंगे, और काउंट भी कर लिया तो उसके लिए कितनी, कौन सी दवाई की जरूरत है, कितनी दवाई छिड़कने की आवश्यकता है, एंड व्हाट मेथड वी शुड अप्लाई फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दैट एग्रोकेमिकल। ये सारी चीजें हमें एआई की हेल्प से, क्रॉप मॉनिटरिंग सिस्टम जो है उससे, और कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी है उससे हम इन चीजों का पता लगा के फिर अपने क्रॉप का हेल्थ मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो फ्रूट्स में है क्रॉप रेडिनेस आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, इसमें आप देखेंगे जैसे बनाना है, बनाना में आप देखेंगे, देखने को तो ये बड़ा छोटा सा स्पॉट दिख रहा है, लेकिन इसको एनलार्ज करके देखा गया तो इसमें समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ इसमें प्रॉब्लम है, बड़ा हो जाएगा जल्दी। तो ये लिख रहा है अराइप बनाना इज येलो विद ब्राउन स्पॉट इन विजिबल लाइट बट ग्लोज ब्लू इन यूवी लाइट। साइड में जो ग्लो कर रहा है इसका मतलब ये यहाँ पर कुछ ना कुछ इसमें डिजीज या चीजें ऐसी स्टार्ट होने वाली है जिससे कि कुछ ही दिनों में खराब हो जाएगा। तो ये स्कैनिंग करके, इसको हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं, उस तरीके से इसका यूज करके हम जो भी हमारे सॉरी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं उनको अच्छे से हम मैनेज कर सकते हैं कि भाई खराब ना हो सके। ऐसे टोमेटो के लिए एक सिस्टम है, जैसे टोमेटो फ्रूट डेवलप्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू different stages. IG means immature green, MG means mature green, BR means orange breaker, and RR means red ripening stage. ये 1 2 3 4 टाइप का स्टेज आपको दिख रहा है। तो टोमेटो को इसके बेसिस पे ग्रेडिंग की जा सकती है विदाउट टचिंग, कोई मैनुअल इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। ग्रेडर में ये सिस्टम लगा दिया गया, वो ऑलरेडी स्कैन करता रहेगा और इस चार के बेसिस पे टोमेटो लॉट, टोमेटो हार्वेस्ट होके आया, ग्रेडर में हमने भरा और उसको स्टार्ट कर दिया तो ग्रेडर ऑटोमेटिकली इसके बेसिस पे 4 ग्रेड में आपको बना देगा और फिर मार्केट में आपको सबके अलग अलग प्राइस मिलेंगे। इट मींस जब आप ग्रेडिंग करके ले जाएंगे तो आपको अच्छा प्राइस मिलेगा और मिक्स लेके जाएंगे तो मिक्स वाला प्राइस मिलेगा, मतलब सस्ता आपको बेचना पड़ेगा। ठीक है, इसके ढेर सारे बेनिफिट्स हैं कि कुल मिला के आप ये समझे बेनिफिट कि भाई आपको फाइनली फार्मर को ज्यादा प्राइस मिलने वाला है उनके प्रोड्यूस का, और जो लॉसेस होने वाले थे डिफरेंट टाइप के डिजीज से और इंसेक्ट से उनसे हम बच सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप देखेंगे एआई फॉर हार्वेस्टिंग बाइंग क्रॉप्स, ये टोमेटो के हार्वेस्टिंग के लिए आप देखेंगे आराम से ये जो रोबोट्स है ये हार्वेस्ट कर लेगा इसको, और बड़े सोफिस्टिकली वे में इसको हार्वेस्ट करता है। अगर हम मैनुअली तोड़ेंगे तो हम प्लांट को भी डैमेज कर सकते हैं, लेकिन जब ये हार्वेस्ट करता है तो न तो प्लांट डैमेज होने वाला है ना फ्रूट आपका डैमेज होने वाला है। तो ये सब एआई बेस्ड चीजें हैं। एक है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डीएसएस जिसे बोलते हैं, फॉर फील्ड प्रोडक्शन यूजिंग एआई टेक्निक्स। ठीक है, इसमें क्या क्या यूज करते हैं हम, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज करते हैं, एएनएनएस, जेनेटिक एल्गोरिथम, ग्रे सिस्टम थ्योरी एंड जीएसटी। तो इन चीजों का यूज करके हम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का यूज करके और इससे हम मार्केट में कौन सी चीज कब भेजनी है नहीं भेजनी है उस तरीके से हम इसका डिसीजन कर सकते हैं। एआई ड्राइवरलेस ट्रैक्टर पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, वीडिंग पे डिस्कशन कर चुके हैं, ड्रोन्स के बारे में अभी मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि प्रेसिजन फर्टिलाइजर प्रोग्राम प्लानिंग के लिए इसको यूज किया जा रहा है, वीट एंड डिजीज कंट्रोल के लिए भी इसको यूज कर रहे हैं।
ट्री एंड लैंड मैपिंग के लिए भी यूज कर रहे हैं, एंड क्रॉप स्प्रेइंग के लिए। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर में इसका यूज क्रॉप स्प्रेइंग के ही लिए किया गया। तो ये सब मेरी तरफ से। एंड आप देखेंगे ये डिफरेंट टाइप के रोबोट्स एग्रीकल्चर में यूज किए जा रहे हैं। इसका जस्ट एक पिक्चोरियल व्यू है। आप रोबोट्स का यूज एग्रीकल्चर के हर फील्ड में किया जा सकता है, बशर्ते ये थोड़े क्या बहुत महंगे हैं। और इंडिया की एग्रीकल्चर में अभी इतना एक तरीके से कहें क्रांति नहीं आई है, या हमारे पास ऑलरेडी इतने ह्यूमन हैंड्स हैं, वी हैव सफिशियंट मैन पावर टू डू एवरी वर्क ऑफ अवर फील्ड बाय द ह्यूमन हैंड्स। तो इसलिए हम उनका यूज कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे, हम लोग जब भी SC AG के बच्चों को अपने यहाँ पढ़ाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि भाई BSc AG करने के बाद क्या करना है। तो सारे बच्चों का कोई उसमें से एक सिंगल बच्चा जवाब नहीं देता कि साहब हम खेती करेंगे। वो सबका ये रहता है कि हमें एक वाइट कलर जॉब मिल जाए, एंड वी कैन सर्व अवर कंट्री, वी विल सर्व अवर कंट्री विद अ गुड सैलरी। तो उनको देश की सेवा करनी है, बढ़िया है, हर किसी का सपना होता है। मेरा भी सपना था कि भाई हम देश की सेवा करेंगे, मतलब अच्छी सी नौकरी मिल जाए। लेकिन नोबडी रिप्लाइड कि साहब हम खेती करेंगे। तो जब खेती कर पढ़ने वाला ही खेती करने को तैयार नहीं है, तो इंडियन एग्रीकल्चर में फिर वो जो हाथ हैं, कोरोना पीरियड में एवरीवन हैज विटनेस्ड कि जितने लोग गांवों से शहरों में गए थे वो फिर वापस जब शहरों में आए, तो इसका मतलब क्या है कि इतने लोग माइग्रेट करके शहरों में जाते हैं, जो अगर गांव में ही रहें तो अच्छा खासा उनको रोजगार मिल सकता है। लेकिन कुछ बदकिस्मती कहें या कुछ सिस्टम हमारा इस तरीके का है, सिस्टम का फेल्योर हम कहें, कि एग्रीकल्चर में इतना जॉब नहीं है कि लोग को मजबूरी में बाहर जाना पड़ता है। एग्रीकल्चर में बहुत सारे, एक कहावत है ना कि हमारा जो एग्रीकल्चर ये मौसम के साथ जुआ है। तो गर्मी है, धूप है, सर्दी है, पसीना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो लेबर जो हमारी ह्यूमन लेबर हैं, रूरल पीपल हैं, दे आर हैप्पी टू वर्क इन इंडस्ट्री डे एंड नाइट। वो वहां पर काम कर लेंगे, चौकीदारी कर लेंगे, ATM पे गार्ड की नौकरी कर लेंगे। बट मेंटेलिटी है भाई अपनी अपनी। मेरे को भी अगर कोई कहेगा तो मैं भी खेती में ऐसे ही नहीं घुस जाऊंगा। मैं भी चाहूंगा भाई कहीं पे मैं 8 घंटे खड़े होकर ड्यूटी कर लूंगा साहब गार्ड की, लेकिन खेत में काम नहीं कर पाऊंगा। तो इन सारी चीजों की वजह से आज नहीं तो कल इन सारी टेक्नोलॉजी का हमारे एग्रीकल्चर में इम्प्लीमेंटेशन करना ही होगा। छोटी छोटी चीजें आप देख रहे हैं, ड्रोन आ गया और बहुत सारी चीजें आ गई, सेंसर बेस्ड मशीनें आ गई। तो इनका उपयोग तो हम आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे, और धीरे धीरे इन मशीनों का जब हम उपयोग करेंगे तभी 2047 तक हम एक डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट में आएंगे। तो थैंक यू। मैं फिलहाल यहीं पे अपनी बात को रोकना चाहूंगा। अगर किसी का कोई सवाल है। Thank you, sir. Thank you for taking your time to share valuable insights on crucial topic of fostering agriculture through AI and IoT. Your detailed explanation of the application of these technology in agriculture has been truly enlightening. These innovations are not merely tools but transformative forces driving the futures of sustainable farming. We deeply appreciate your expertise and the inspiration you have provided through exploring these advancement further. Thank you, sir. There are some questions from participants. हाँ There is one प्लीज। question from Amra. Sir, are there any ways in which use of insecticides and pesticides be avoided? Are there any natural fertilizers with which crop growth is possible? पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड की ये बात कर रहे हैं और साथ में फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा मैं शायद समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब ये पूछ रही हैं कि जो भी हैं पूछ रहे हैं कि कौन से फर्टिलाइजर वो हैं, पेस्टिसाइड हैं जिनको हटा के हम फर्टिलाइजर यूज करें। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, मैं थोड़ा समझ नहीं पाया। योर वॉइस। Sorry, sir. Sorry. Are there any ways in which use of insecticides and pesticides be avoided? And ओके। are there any natural fertilizers with which crop growth is possible? ओके, जो मैं समझ पा रहा हूँ, इन्होंने दो क्वेश्चन पूछे हैं कि कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को अवॉइड कर सकें। तो अभी देखिए, पूरे इंडिया में एक नया ICAR ने शुरू किया है, दैट इज नेचुरल फार्मिंग, है ना। तो नेचुरल फार्मिंग में क्या है कि किसी भी टाइप का कोई एग्रोकेमिकल यूज नहीं किया जाता है। और उसमें जैसे हमारा जो नीम है,
नीम बेस्ड जो हम चीजें बनाते हैं, नीम ऑयल है, नीम का पत्तियों का जूस है, तो उनको हम एज ए पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं। वो एग्रोकेमिकल नहीं है, मतलब केमिकल नहीं है, लेकिन हम उनको यूज करते हैं। दूसरा, जो फर्टिलाइजर की बात करें तो इसमें हमारे जैसे नैनो फर्टिलाइजर्स है ना, यूरिया, सॉरी, ये इफ्को का है, क्रबको का है, इनका आपका नैनो डीएपी, नैनो यूरिया, सागारिका, और आजकल तो बहुत सारे इनके नैनो फर्टिलाइजर्स आ गए हैं जिनको हम यूज करें तो ये केमिकल नहीं है, क्रॉप में हम यूज करेंगे और इनसे कोई हमें, हाँ, मतलब हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। कैंसर जैसी बीमारी फिलहाल तो कोई रिपोर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तो ये लेटेस्ट एंट्री हुई है इनकी एग्रो इसका बायो फर्टिलाइजर्स का, तो इनका हम यूज कर सकते हैं। आई होप कि मैं इनके आंसर को, मतलब क्वेश्चन को मैं आंसर कर पाया हूँगा। अगर फिर भी कुछ और पूछना चाह रहे हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। जी सर। सर ये लाइक आई देर एम इज आस्किंग नाउ, या मैं क्वेश्चन पढ़ पा रहा हूँ। लाइक आई एम आस्किंग हाउ वी कैन रिप्लेस द केमिकल्स। ओके, केमिकल्स को कैसे रिप्लेस करेंगे, तो बेटा मैंने बताया ना कि दो चीजें हैं। अभी जो करंट में हमारा चल रहा है, वो हम जैविक खेती पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे थे। और जैविक खेती करने का मतलब था कि आप अपने किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में कम से कम 3 ईयर किसी भी टाइप का एग्रोकेमिकल, आइदर योर फर्टिलाइजर्स और आपका जो भी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड है, अगर 3 साल तक हम अपने किसी खेत में यूज नहीं कर रहे हैं और वहां पर प्रोडक्शन ले रहे हैं, तो चौथे साल से जो हमें प्रोड्यूस मिलेगा उसको हम बोलते थे कि भाई ये बायो ऑर्गेनिक है, जैविक खेती है। लेकिन हो क्या रहा है कि उसमें भी हर जगह हर तरीके के लोग हैं, तो वो मिक्स कर दे रहे थे। तो गवर्नमेंट ने भी क्या नया स्कीम स्टार्ट किया है जो एकदम केमिकल फ्री है, वो है नेचुरल फार्मिंग। इसमें ऐसा करके भी देख रहे हैं लोग कि अगर आपके पास एक देसी गाय है, उससे आप 30 एकड़ की खेती बिना किसी बाहर का कोई आउटपुट लिए, एक्सेप्ट सीड, वो सारा आप एक गाय से 30 एकड़ की खेती कर सकते हैं। सिर्फ बीज आपको बाहर से लेना है, वो भी देसी बीज लेना है। तो उस तरीके से अगर हम करेंगे तो एग्री केमिकल से एकदम हम अवॉइड कर सकते हैं उन चीजों को। हाँ, नेक्स्ट, फिर आपका म्यूट There है। is one more question from Sayed Ali. Sir, how to overcome the impact of AI on employment security and livelihood, especially in developing countries? ओके, गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी मैंने एआई के बारे में सुनना शुरू किया, मैंने समझना शुरू किया, तो क्या था कि सबसे पहले तो बीइंग ए टीचर, पहले तो हमने यही देखा कि अगर एआई आ गया तो टीचर की नौकरी खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप देखेंगे एआई का यूज करके, चैट जीपीटी है और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहां पर मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि आपको एक क्वेश्चन है, आप उसमें टाइप करिए, वो आपको 1000 टाइप के जवाब दे रहा है। ठीक है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं उनके जवाब को समझाने के लिए। तो क्या है कि टीचर से आप एक क्वेश्चन करते हैं, तो वो आपको शायद एक या दो पॉसिबल जवाब देगा। आपने वही चैट जीपीटी से, एआई की हेल्प से एक क्वेश्चन डाला, उसने 1000 जवाब दे दिए। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि उन 1000 रिप्लाईज में से कौन सा आपके काम का है। ऐसे ही एआई का ऐसा कहीं नहीं होने वाला है कि एआई आ जाएगा या आ गया है तो एम्प्लॉयमेंट पे फर्क पड़ेगा। क्योंकि एआई को यूज करने के लिए भी तो बंदे चाहिए होंगे ना। ऐसा थोड़ी ना है कि एआई आ गया तो वो ऑटोमेटिकली सारा दुनिया कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि जॉब का जो है चांसेस कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ जॉब्स कम हो जाएंगे, लेकिन जॉब एकदम से खत्म हो जाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। Sir, there is one question from Subhash. Sir, how far the AI plays a major role for small scale farmers? How can they access AI technology, sir? ठीक है। ये मैंने ड्यूरिंग माय प्रेजेंटेशन आई हैव डिस्कस द लिमिटेशंस एंड रिकमेंडेशन ऑफ एआई एंड आईओटी। तो उसमें मैंने यही चीज बताई है कि अभी तो जो ये फील कर रहे हैं, जो इनका क्वेश्चन है वो फिलहाल क्वेश्चन ही है। इस पे गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी बनाए, गवर्नमेंट सब्सिडी दे, तभी वो लोअर, मतलब जो लो, क्या बोले उसको, कम खेती वाले जो फार्मर्स हैं, लो लैंड होल्डिंग वाले हैं, तभी वो उसको यूज कर पाएंगे। अभी कोई भी फार्मर एआई का यूज नहीं कर रहा है इंडिया में। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं, हमारे पास एक ड्रोन आईसीआर ने दिया, एंड दे सेड कि इसको आपको फार्मर्स के यहाँ डेमो करना है। ये नहीं कहा कि फार्मर के यहाँ करवाना है जबरदस्ती, उनको डेमो देना है। तो अभी टेक्नोलॉजी महंगी है। जो हमारे फार्मर्स हैं इंडिया में, मोस्टली दे आर मार्जिनल फार्मर्स हैं या स्मॉल फार्मर्स हैं, तो वो उन टेक्नोलॉजी को अभी फिलहाल यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन कमिंग फ्यूचर में वो उनको धीरे धीरे यूज करेंगे। एक एग्जांपल मैं देता हूं, जो अभी फर्टिलाइजर्स पूरे इंडिया
में जो मिल रहा है हमें ग्रेनुलर फर्टिलाइजर जिसे हम बोलते हैं यूरिया या डीएपी, आने वाले 5 से 10 सालों में ये मिलना बंद हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं। तो चीज वो फर्टिलाइजर जब मिलेगा ही नहीं, तब आपको लिक्विड फर्टिलाइजर से नैनो फर्टिलाइजर्स यूज करने होंगे। देन यू हैव टू फोर्सफुली ऑप्ट दैट सिस्टम। अगर आप नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो फर्टिलाइजर आपको उगाने वाले मिलेगा ही नहीं, तो खेती करोगे कैसे आप? फिर आपको मजबूरी में करना पड़ेगा, और फिर वो मजबूरी धीरे धीरे आदत बन जाएगी, फिर वो उनके उस सिस्टम में आ जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल 5 से 10 साल हमारे देश में ऐसा कुछ गरीब फार्मर्स के लिए होने वाला नहीं है, लेकिन आगे जरूर होगा। Sir, next question is also from Subhash. Currently, through which scheme small farmers can access through it, sir? अ, अभी जो स्कीम है वो ओनली ड्रोन की चल रही है, जो मेरे नॉलेज में है पूरे इंडिया में। और अलग अलग स्टेट, जैसे साउथ इंडिया इंडिया के स्टेट्स हैं, वहां पर कुछ लोकल लेवल में, मतलब स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल में उन्होंने स्कीम चलाई हुई है। तो ड्रोन का तो पूरे इंडिया में चल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की तरफ से। इसके अलावा छोटे में जैसे आप देखेंगे, ये आपके रोबोट्स यूज किया जा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे आईआईबीआर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, हमारे बनारस में। तो उन्होंने, उनके पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, तो उन्होंने कुछ डेमो के लिए छोटे छोटे रोबोट्स फार्मर्स को जस्ट दे नहीं रखे हैं, वो उनके फार्मर्स पे डेमो के लिए लेके जाते हैं कि हार्वेस्टिंग कैसे करनी, क्योंकि पूरा एरिया यहाँ पे वेजिटेबल वाला है ना। ऐसे ही इरी है हमारे बनारस में ही, इंटरनेशनल राइस रिसर्च जो सेंटर है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर, उसका रीजनल सेंटर हमारे बनारस में है। तो वहां पर भी उनके पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो फार्मर्स को जस्ट डेमो के लिए वो विजिट करने आते हैं, तब उनको दिखाते हैं। अभी एज सच फार्मर के पास गवर्नमेंट की मेरे हिसाब से कोई स्कीम नहीं है एक्सेप्ट दिस ड्रोन, जो वो यूज कर पाए। I think that's all from participants, sir. अच्छा, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा जो इस क्वेश्चन का वो था। अभी जैसे मैं अपने यूपी में देखता हूँ, यहाँ पर क्या है कि जैसे आपका इफ्को के जो आउटलेट्स हैं, क्रिबको के जो आउटलेट्स हैं, ये जो ड्रोन की मैं बात कर रहा हूँ, ये चूंकि 10 lakhs का आ रहा है, अगर फार्मर्स भी लेता है तो 5 लाख का मिलेगा। तो 5 लाख कोई फार्मर नहीं परचेज करने को एग्री होता, वो सोचता है ट्रैक्टर ले लेंगे साहब, ड्रोन लेके हम क्या करेंगे। तो ऐसी कंडीशन को, सिचुएशन को देखते हुए जो गवर्नमेंट सेटअप है, या जो जो इंडस्ट्रीज हैं, इन्होंने क्या किया, उनके आउटलेट्स पे एक एक ड्रोन उन्होंने डेमो पर्पज के लिए रख दिया है। कि अगर मान लो आई एम ए फार्मर और मैं वहां पर नैनो यूरिया लेने गया, तो मैं अगर उस आउटलेट का ओनर वहां पे मैं बात करता हूँ, तो वो ओनर बोलता है ठीक है साहब, आप अगर 2 बॉटल आपने यूरिया लिया, नैनो यूरिया लिया, तो मैं आपके यहाँ फ्री में स्प्रे करूंगा। जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस, कि फार्मर्स को उन चीजों का रियलिटी पता लगे, क्या उनके बेनिफिट हैं, क्या उनके लॉसेस हैं। Thank you, sir. Thank you for your engaging and insightful presentation, as well as for addressing all the participants' queries. I'm confident that the participants have greatly benefited from your extensive expertise. We sincerely appreciate your willingness to share your profound knowledge with us. Wishing you continued success in your path. Thank you once again, sir. वेरी थैंक यू। इंफॉर्मेटिव सर। हाँ, सुष्मिता जी धन्यवाद, और स्पेशली मेहता साहब का बहुत बहुत यस सर। धन्यवाद कि उन्होंने मेरे को मौका दिया लोगों से बात करने का। और सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि जितने भी मैं जी सर। आवाज आ रही है मेरी सर? आ रही सर, आ रही। Yes, sir. अच्छा, बस मैं 2 सेकंड में खत्म करता हूँ। सबसे जी अच्छी सर। बात मेरे को लगती है मेहता सर वाले प्रोग्राम में, कि ज्यादातर जो ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं उसमें सब इंग्लिश में चलता है। यहाँ पे क्या है कि बाइलिंगुअल मोड में ना, जो मेरे को लगता है कि जो स्पीकर बोलना चाह रहा है वो ऑडियंस को समझ में आना चाहिए, जो ऑडियंस पूछना चाह रहा है वो स्पीकर को समझ आना चाहिए। ये चीज आपके जी यहाँ मेरे सर। को बड़ी अच्छी लगती है। तो इसके लिए मैं फिर से आपका धन्यवाद देता हूँ, और उम्मीद करता धन्यवाद हूँ सर। कि फ्यूचर में भी हम लोग बिल्कुल ऐसे सर, कभी न डेफिनेटली कभी सर। मिलते रहेंगे, कुछ और अच्छा जी सर, फार्मर्स के लिए करते रहेंगे। ठीक है डेफिनेटली सर, सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you, sir. धन्यवाद सर। थैंक यू As we सुष्मिता जी, conclude, धन्यवाद। thank you, sir. As we conclude tonight's program, I would like to express my heartfelt gratitude to our esteemed presenter. Your sharp insights and extensive expertise have been truly inspiring, enriching the knowledge of all participants. It has been an honor to learn from you. We extend our best wishes for your future endeavors. I also thank our participants for their attentiveness and active engagement throughout the session. On behalf of Vital Biotech, the Agriculture Forum for Technical Education,
of Farming Society Kota, Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya Raipur, the University of Agricultural Sciences Raichur Karnataka, Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya Bilaspur Chhattisgarh, Farmers Park Hyderabad, Telangana, and the entire organizing team. I deliver my heartfelt gratitude to our esteemed guests, distinguished speakers, and enthusiastic participants for joining this 21 days winter school program. Your patience, active engagement, and attentiveness throughout the session have been truly admirable. Thanks once again for your invaluable contribution. Have a delightful evening. Thank you all. Thank you. Namaskar. Thank you, sir. Jai Hind.